अच्छा, EC2 इंस्टेंस जो है बेसिकली वो क्लाउड की टेक्नोलॉजी है। वर्चुअल मशीन का तो आपको पता है, ठीक है, आप सब या तो काली लिनक्स चला चुके हैं, CentOS 7। अगर इसी वर्चुअल मशीन को आप AWS पे चलाना चाहते हैं तो उसको हम EC2 कहते हैं। दैट्स इट, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। इलास्टिक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो आपके पास ये वर्चुअल मशीन होती है, आप इसके रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, स्केल कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसलिए इसको EC2 इंस्टेंस कहा जाता है, ठीक है, इसको EC2 वर्चुअल मशीन कहा जाता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास EC2 इंस्टेंस है, ठीक है, और उस पे आप अपने वेब सर्वर को चला रहे हैं, ठीक है, उस पे जो है तो आप अपने वेब सर्वर को चला रहे हैं, आपकी वेबसाइट होस्ट हो रही है, तो सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन आ गए। तो बेसिकली अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड होगा, बात कर रहा था मैं IAC की, तो आप अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, चाहे वो आपकी डेवलपमेंट है, चाहे वो आपके IT ऑपरेशंस हैं, अगर वो एज अ कोड डेवलप किए, उसे भी कोड किया गया है, तो उसको मेंटेन करना, ठीक है, उसको मॉडिफाई करना बड़ा इजी हो जाता है, बजाय इसके कि आप AWS पे जाएं और वो आपको कुछ फीचर्स अलाउ करें या कुछ फीचर्स अलाउ ना करें। वो कस्टमाइज फीचर जो आप चाहते हैं, ठीक है, तो वो शायद वो जो है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में कर सकते हैं, ठीक है, not exactly in Azure or AWS. So this is the power of DevOps. You can create everything of your own in a very limited amount of time. You can do great things. Okay, so DevOps is essential. I am a CAT student. I am a student of CAT. Should I consider DevOps as well in future? My interests are data science and cybersecurity. Oh my God, you have a lot of interests. DevOps, data science, and cybersecurity. Okay. I would suggest sticking to one thing for now. If you're a CAT student, try to stick to your CAT curriculum. I think there's a lot to cover. Yeah, just focus on one thing at a time. That's what I've been advising people, that do not jump into two ships, not jump into two things at one time, right? Once you finish CAT, then you'll have a better idea of where you want to go. If you want to go in RTL, yeah, go for DevOps, and then you can go for the SysOps, and then you can start working at a really higher level. But then your interests are data science and cybersecurity, then these are specializations, okay? So if you want to go in cybersecurity, then you will end up needing a cyber advancement track and offensive advancement track. And if you want to know about how all these systems are implemented, then you need to study DevOps first, and then cybersecurity, cyber defense advancement track, and then offensive advancement track, if you want to go on the offensive side as well, right? So these are directions that are very specific. You can't just randomly study all of these at the same time. Like a lot of students have been telling me that I want to do BS in computer science from virtual university, and at the same time I want to study CAT and advancement tracks. I'm like, are you guys crazy? Like, you can't do all of these things at the same time. Even if you manage to finish all of these, either you're going to lose your health, your sanity, or you won't study with quality. You'll be just dumping in a lot of information. Is it necessary and sufficient condition to learn SysOps first to be a DevOps engineer? No, I think SysOps is more about management of the resources and how you assign them and configurations. DevOps is more about how you're going to automate the development process, right? How you're going to bring together the IT operations and the development process and going to automate them. This is what a DevOps engineer does. But if you want to learn SysOps, it might help you a bit, but not necessarily. But if you become a DevOps engineer, you'll be learning system operations at the same time. I was looking at the SysOps advancement track of Nafi, right? So they were teaching nothing more than what I'm going to teach you, like AWS architecture, Azure architecture. You can literally go on YouTube and take those courses. But if you learn DevOps, there's a lot to learn. You'll be learning AWS, you'll be learning Azure, you'll be learning a lot of other stuff, okay? Yeah, they're interlinked because they both use cloud for now, but not necessarily. DevOps is, like I mentioned, is it's a philosophy of work. SysOps
It's not a philosophy of work. It's kind of an engineering. It's kind of a science of how you operate your systems. Okay, so all right. So infrastructure as a code. Why infrastructure as a code is important is because when you develop your IT infrastructure in code, you code it, you script it, you automate it, you can easily customize your whole infrastructure based on your own needs. But when it comes to using AWS, Azure, GCP, or Oracle, you're pretty much limited to what they have to offer you, right? You cannot create your, basically you can create your own Amazon machine images, but what if you have a kind of need that AWS or Azure cannot fulfill? There and then, what you need to do is develop your own infrastructure as a code, all right? So this is a concept of DevOps, that your whole infrastructure will be coded, will be written in the scripting language, it will be automated, and your infrastructure as a code could be like having a GitHub one in your IDE. IDE is basically integrated development environment, right? Integrated development environment. An integrated development environment is basically an environment where you can write your code in any language, and then you have tools to build it, to test it, to debug it, and to deploy it. So integrated development environment, along with an automated process such as GitHub, is a part of DevOps. It's a concept of DevOps. It's the same as the picture I showed you right here. You can see there is the icon of GitHub. There's Docker as a container and many other services. There's source control and so on. So what these services, these tools do is basically to automate your whole development process, your IDE operations, right? That's why DevOps is so powerful, because it saves you time, it saves you money, it saves you headache. All right. So for today, this is where we're going to end our DevOps lecture. What DevOps is. If any of you guys have any question regarding DevOps, you guys can go ahead before I start lecture on system design, right? You can ask in English or Urdu, but I would prefer to be talked to in English so you guys can get an opportunity to improve yours, right? So anyone has any question, you can unmute your mic. I'm all ears. I'm listening to you. No judgment, nothing. Just chill. Anyone has any question, kindly ask. Come in with a question. Make a question in your mind. Don't sit there blank. Right now, I'm seeing 6 people participating in this Zoom session. You have any question, just ask me. All right. Since you guys have no question, I'm going to transition into system design. A very interesting topic. I recently bought this book on system design by Dr. Zishan, and I wanted to share with you what I'm learning from there. I don't have any questions. I don't know too much about DevOps. Okay, that's fine. It's fine. It's all right. As we finish this introduction in the next session about DevOps, you'll have a lot of questions for me, the ones that I won't be able to answer as well. So yes, that's right, Dr. Zishan Usmani. Okay, let's dive into system design, right? अच्छा जी, सिस्टम डिजाइन क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो है तो सिस्टम डिजाइन की बड़ी अहमियत है, ठीक है? अगर आपको सिस्टम डिजाइन समझ में नहीं आता कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंस्टाग्राम कैसे चल रहा है, यूट्यूब कैसे चल रहा है, ठीक है, ये आपस में कैसे चलते हैं कि यूट्यूब पे जो नोटिफिकेशन आ रही है वो मेरे मोबाइल पे भी आ रही है, ठीक है, मेरे फोन पे भी आ रही है,
जो मैं अपने फ़ोन से अपलोड करता हूँ वो यूट्यूब जो अपने कंप्यूटर में खोलता हूँ वहाँ भी काम कर रही है। ठीक है, यूट्यूब पे मेरा गूगल का ईमेल कैसे यूज़ हो रहा है, यूट्यूब पे जब मैं कोई क्लिक करता हूँ तो उस पे रिकमेंडेशन कैसे होती है मुझे, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इट ऑल फॉल्स अंडर सिस्टम डिज़ाइन। किस तरीके से आपने अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन करना, ठीक है? तो अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो सिस्टम डिज़ाइन वो तरीका है, वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स होती हैं उनको कंसिडर करके हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, एक निज़ाम बनाते हैं, ठीक है? और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक आर्किटेक्चर बनाते हैं और उस आर्किटेक्चर पे हम अपना पूरा सिस्टम बिल्ड करते हैं, ठीक है? तो सिस्टम डिज़ाइन में हम किन चीज़ों को देखते हैं कि कौन से ऐसे आर्किटेक्चरल पीसेस हैं जो आपस में काम करके हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है? क्या मतलब हुआ? मिसाल के तौर पे मैं एक बनाना चाह रहा हूँ वर्कलोड मैनेजर एप्लीकेशन, ठीक है? अच्छा याद रहे, अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन की समझ आती है ना, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, आप सिलिकॉन वैली में बड़ी अच्छी जॉब्स को आप सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको सिसऑप्स आता है, अगर अगर आपको डेवऑप्स आता है, अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन आता है और आपको डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स अच्छे तरीके से आते हैं, तो आप साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो सैलरीज़ हैं, इट्स लाइक $100 एन आवर, $200 एन आवर, इतनी अच्छी सैलरीज़ हैं उसकी, ठीक है? तो काइंडली कंसिडर करें, डेवऑप्स को भी सीखें, साथ में सिस्टम डिज़ाइन को भी सीखें, ठीक है? ज़ीशान उस्मानी की जो बुक है, इट वाज़ ऑलमोस्ट ₹500, इसे आप लें, अच्छी बुक है, ठीक है? इसे पढ़ें, ऑनलाइन इसके प्रॉब्लम सॉल्व करें और आप अच्छे-अच्छे गूगल और यूट्यूब वगैरह में जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तो आर्किटेक्चर क्या होता है? हमारे पास एक हाई लेवल व्यू होता है, ठीक है? हाई लेवल व्यू किसका होता है? हमारे इनर वर्किंग कंपोनेंट्स का। मैंने एक एप्लीकेशन बनाना है जिसका नाम है वर्कलोड मैनेजर। मेरे दिन के जितने भी टास्क होते हैं, मेरे सारे दिन के जितने भी टास्क होते हैं, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ मेरा जो एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो टास्क मेरे लिए मैनेज करे, ठीक है? अगर आप में से किसी को नहीं पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, ठीक है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मशीन लर्निंग है, वो ऐसे काम करती है कि आप उसे एक मॉडल देते हैं, उस मॉडल की बेस पे वो डिसीजंस मेक करती है, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे काम करती है। अब एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन जो है, वो पहले 7 दिन जो है तो मुझसे डाटा ले, ठीक है? कि मैं कौन-कौन से काम करता हूँ, किस-किस टाइप के काम करता हूँ, ठीक है? और किस टाइम पे करता हूँ, उनको मैनेज कैसे करता हूँ और उस सारे डाटा को इकट्ठा करके डिसीजन मेक करे कि अब आगे मुझे जो मेरा अपना एप्लीकेशन है, वो सजेस्ट करे कि अब आपने किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाना है, ठीक है? पास्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है? तो इसे मैं वर्कलोड मैनेजर के एक नाम दे देता हूँ, ठीक है? तो अब इस वर्कलोड मैनेजर का जो पूरा आर्किटेक्चर है, किस तरीके से इसके जो मल्टीपल कंपोनेंट्स है, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, ठीक है? उसमें मशीन लर्निंग कैसे काम कर रही है, ठीक है? ठीक है? अभी एक हाई लेवल व्यू हो गया, ठीक है? इसको मैं कह देता हूँ स्टेप 1 सॉरी यूज़र इंटरफेस, ये मेरा बैक एंड हो गया, ये मेरा क्या हो गया? मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम हो गया, ठीक है? जो फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान चलता है। अभी आर्किटेक्चर हो गया इसका, हाई लेवल व्यू है ना? अब इंटरनल कंपोनेंट्स क्या हैं? अच्छा, कौन-सी लैंग्वेज यूज़ करनी है? कौन से टूल्स यूज़ करने हैं? कोड को किस तरीके से लिखना है? एल्गोरिदम्स कौन से इस्तेमाल करना है? इनको आपस में कनेक्ट कैसे करना है? दोज़ आर लो लेवल डिटेल्स, लेकिन आर्किटेक्चर हाई लेवल व्यू होता है। उस आर्किटेक्चर को भी बनाने के लिए आपको लो लेवल का लो लेवल की समझ होनी चाहिए, ठीक है? बहरहाल सिस्टम डिज़ाइन जो है तो वो आर्किटेक्चर की तरफ ले जाता है, ठीक है? किस तरीके से आपने सॉल्यूशन डिज़ाइन करने हैं और अगर आप एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास 2 किस्म के सिस्टम होते हैं, ठीक है? सिस्टम डिज़ाइन की बात करें ना, ठीक है? हमारे पास 2 किस्म के सिस्टम्स होते हैं। एक हमारे पास होता है स्केलेबल सिस्टम, ठीक है? स्केलेबल सिस्टम्स होते हैं हमारे पास
और एक हमारे पास होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। स्केलेबल सिस्टम्स को बाद में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को समझते हैं। स्केलेबिलिटी किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझें। आपने एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाया, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है। अब जैसे ही टाइम गुजरता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती चली जाती है, वक्त के साथ साथ उसकी नीड्स बढ़ना शुरू हो जाती है या कम होना शुरू हो जाती है। एक सिस्टम तब स्केलेबल कहलाएगा कि जब ऑर्गेनाइजेशंस की नीड के साथ, चाहे वो बढ़े या कम हो, उसमें हम चेंजेस कर सकें। एक सिस्टम तब स्केलेबल कहलाएगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन को टाइम के साथ ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत हो, तब उस सिस्टम में गुंजाइश पहले से छोड़े कि हम उसमें रिसोर्सेज ज्यादा कर सकें, या अगर उसे रिसोर्सेज कम करनी पड़े तो उसकी रिसोर्सेज कम कर सकें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द मेन बिजनेस प्रोसेस। इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी, ठीक है। वसअत पजीरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन कभी भी स्केलेबिलिटी में पहले से इन्वेस्ट नहीं किया जाता। जब आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, अब जब सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो ये ना हो कि आप स्केलेबिलिटी पहले से ही, मिसाल के तौर पे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फिलहाल आपको 5 सर्विस की जरूरत है, ठीक है, और आप ये अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है मुझे 10 साल बाद जो तो 10 सर्विस की जरूरत पड़े या 100 सर्विस की, तो मैं अभी से 100 सर्वर लगा देता हूँ। बेवकूफ़ी है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हो सकता है 10 साल बाद आपको जरूरत पड़े, और पॉसिबल ये है कि ना पड़े 100 सर्विस की। आपने 100 सर्विस खरीद लिए, 2 महीने के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने बंद होना है, ठीक है, और आपके जो $30 मिलियन थे वो गए, ठीक है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एटलीस्ट हम डिजाइन कर लेते हैं, हम गुंजाइश छोड़ते हैं। कोई भी जो आर्किटेक्ट होता है, वो जब किसी घर का नक्शा बनाता है तो हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए नक्शा बनाता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बिल्डर को कहता है या वो ओनर को कहता है जो घर बनवाना चाह रहा होता है कि यार हो सकता है तुम्हें कल को 4 बाथरूम की जरूरत पड़े, ठीक है, तो तुम अभी से 4 बाथरूम बना लो, तुम्हें बाद में नहीं बनाने पड़ेंगे। गलत है, बहुत गलत बात है। आर्किटेक्ट को चाहिए कि वो गुंजाइश छोड़े, लेकिन उस पर बनवाए ना, उस नक्शे के अंदर डाल ना दे कि हाँ ये तुमने बनाना लाजमी। ये बेवकूफ़ी है। तो स्केलेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने लाजमी उसे करना है, आपने ज़रूरत की बेसिस पे उसे करना है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम्स, ऐसे आईटी सिस्टम स्केलेबल सिस्टम होते हैं जिन्हें वक्त आने पर उन्हें हम कम या ज़्यादा उसके रिसोर्सेज को कर सकें, चाहे वो उसके नेटवर्क्स हों, राउटर्स हों, स्विचेस हों, कंप्यूटर्स हों, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हों, जो भी चीज़ हो, ठीक है, उसको हम कम या ज़्यादा कर सके नीड बेसिस पर। उसे हम स्केलेबल सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ये होता है कि जिसमें आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। आप एक ही सर्वर को इस्तेमाल नहीं कर रहे सब कुछ करना, आपने मल्टीपल सर्वर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल सर्वर्स लगाए हुए हैं, और उसमें अगर एक सर्वर फेल होता है दूसरा सर्वर टेक ओवर कर लेता है, दूसरा फेल होता है तीसरा सर्वर टेक ओवर कर लेता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की कुछ खुसूसियात होती हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसकी स्केलेबिलिटी। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मुझे स्केल करना पड़े, मुझे सर्वर्स ऐड करने पड़े, तो मैं कर सकूं। मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को ऐसे डिजाइन ना करूं कि मैं बस 5 से ज्यादा मशीनें ना लगा सकूं और मुझे 100 की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की जो सबसे पहली खुसूसियत है वो स्केलेबिलिटी है, ठीक है। इसे उर्दू में कहते हैं वसअत पजीरी, वसी करना किसी चीज को। नंबर 2 है इसकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? अगर हमारे सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में या आईटी सोल्यूशन में अगर हमारे पास एक कंपोनेंट या कुछ कंपोनेंट्स अगर फेल हो जाते हैं, तब भी हमारा जो आईटी का सिस्टम है, जो हमारा जो पूरा सिस्टम है, वो चलता रहे। और किसी भी सिस्टम की रिलायबिलिटी नापने का क्या तरीका है कि आप उसमें ये चेक करें कि लेट्स से कि अगर 5 इसमें 10 में से अगर 5 सर्वर्स मेरे डाउन हो जाते हैं, तो क्या मैंने अपने सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया है कि मेरी वेबसाइट फिर भी चलती रहे और ट्रैफिक फ्लो में कम ना हो, कमी ना आए।
डिस्ट्रप्शन ना आए। इसे कहते हैं रिलायबिलिटी। हाउ रिलायबल सिस्टम इज डिपेंडेंट अपॉन how it behaves in the face of controversy, in the face of contingency, कि जब मसला है, कोई ऐसी आफत आ जाए, तो उससे कितना रिलायबल, आप उससे कितना रिलाय कर सकते हैं, किस हद तक चलेगा। ठीक है। तीसरी जो खासियत है वो हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी। तो आपको पता है, ये मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। अवेलेबिलिटी क्या चीज होती है? ठीक है, अवेलेबिलिटी एक अवेलेबल सिस्टम होता है। ठीक है, कि एक खास टाइम के अंदर वो सिस्टम कितना ऑपरेशनल है। ठीक है, एक सिस्टम की अवेलेबिलिटी का आपको तभी पता चलेगा ना जब वो काम कर रहा हो। अगर एक सिस्टम ऑपरेशनल नहीं है तो अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी में हमारे पास दो किस्म के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, एक हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी होती है, एक हमारे पास क्या होती है, नॉट अवेलेबल। सिंपल। अगर आप वेबसाइट पे जाए, वहां पे जो 404 नॉट फाउंड या 500 या इस तरह का कोई एरर आ जाए, द सिस्टम, द वेबसाइट इज नॉट अवेलेबल। लेकिन जब आप YouTube पे जाते हैं, इट्स वर्किंग नॉर्मल, इट्स एट इट्स पीक, ये अवेलेबल सिस्टम, आप इसको यूज कर सकते हैं, इट्स ऑपरेशनल। ठीक है, तो उन्होंने जब YouTube को डिजाइन किया तो उन्होंने पहले से प्लान किया कि कल को YouTube अवेलेबल होगा, कितना अवेलेबल होगा, किस कंडीशंस में अवेलेबल होगा, उन सबको आप कंसिडर करते हैं। ठीक है, अच्छा, चौथी खासियत क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की चौथी खासियत क्या है? एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है। उसकी कारकर्दगी क्या है? क्या आपने जो अपना एक सर्वर खड़ा किया है और एक क्लाइंट खड़ा किया है, क्या उसकी एफिशिएंसी में कमी आ रही है इन टर्म्स ऑफ, मिसाल के तौर पे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, जूम पे, मैं अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि सिस्टम डिजाइन क्या होता है और अभी आपको आवाज आ रही है, दैट्स लेटेंसी, लेट हो गया। ठीक है, इट्स कॉल्ड लेटेंसी। ये बड़ा कॉमन वर्ड है जो कि आपसे उसमें इस्तेमाल होगा। लेटेंसी का इशू, लेटेंसी हो रही है। ठीक है, बफरिंग हो रही है, लेटेंसी हो रही है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का कैसे पता चलेगा कि उसमें डिले कितना है? ठीक है, और उस डिले में थ्रूपुट और बैंडविड्थ कितना है? थ्रूपुट बेसिकली ये होता है कि हमारे पास एक प्रोडक्शन सर्वर है। ठीक है, वो 1 मिनट में कितना अवेलेबल रह सकता है। ठीक है, यानी कि 1 मिनट के अंदर क्या वो 1 GB का डाटा होस्ट कर सकता है? क्या अगर मैं अपने मैं YouTube पे स्ट्रीम करना चाहूँ और मैं करना चाहूँ 1080p की क्वालिटी में मैं वीडियो स्ट्रीम करना चाहूँ जो कि लेट से 1 GB की है, तो क्या YouTube जो है उसे ब्रॉडकास्ट करने में ज्यादा टाइम ले रहा है या नॉर्मल टाइम ले रहा है? ठीक है, क्या उधर पे लेटेंसी का इश्यू आ रहा है या उसका थ्रूपुट सही है? इसे हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की हम एफिशिएंसी को चेक करते हैं। अब जो पांचवा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हमारे पास है एफिशिएंसी, मैनेजेबिलिटी एंड सर्विसेबिलिटी। ठीक है, आज जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ये जो आईटी सिस्टम है, सर्विसेबल है और क्या वो मैनेजेबल है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, हर सिस्टम डाउन होता है, क्रैशेस होते हैं, पैचेस आते हैं उसके। ठीक है, तो सर्विसेबिलिटी और मैनेजेबिलिटी क्या होती है कि अगर आपका सिस्टम खराब हो जाता है तो क्या आप उसे मरम्मत कर सकते हैं? क्या आपने ऐसे डिजाइन किए कि उसकी मरम्मत की जा सकती है? ठीक है, उसे दोबारा आप चालू कर सकते हैं, और क्या उसको मेंटेन आप उसको मैनेज भी कर सकते हो या नहीं? क्या वो मैनेजेबल भी है या नहीं है? यानी कि उसकी रिसोर्सेज इस तरीके से तो आपने नहीं वहां पे आर्किटेक्ट किए कि उसको आप मैनेज ही नहीं कर सकते। ठीक है, एक टाइम पे इस तरीके से प्रोसेसेस चल रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपके लिए मैनेज करना महाल हो जाता है। ठीक है, आप उसके अपडेट्स नहीं कर सकते टाइम पे। ठीक है,
आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो सर्विसबिलिटी यानी मुरम्मत पजीरी, मैनेजेबिलिटी इंतजाम पजीरी। ठीक है, सिंपल। तो एक और चीज पढ़ लेते हैं, लोड बैलेंसिंग। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोड बैलेंसिंग क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम में? लोड बैलेंसिंग ये आप AWS में इसकी लैब करेंगे। लोड बैलेंसिंग ये होती है, आपके पास लेट्स से इसको मैं कैसे हटाऊं, मैं एक और पेन खोल लेता हूँ। लोड बैलेंसर क्या होते हैं? ये आपके पास YouTube का एक सर्वर है, यहाँ से YouTube होस्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से YouTube होस्ट हो रहा है। अच्छा, शुरू में जब YouTube को लोग यूज कर रहे थे तो हमारे पास जो टोटल यूजर्स थे वो हमारे पास लेट्स से 1000 यूजर्स। YouTube डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। जैसे ही वक्त के साथ साथ यूजर्स बढ़ते गए, इससे अगले 2 महीनों में मजीद हो गए और ज्यादा हो गए, फिर अगले महीने में और भी ज्यादा हो गए। अब क्या करेंगे? अब आपको चाहिए था कि आप YouTube को स्केलेबल बनाते, कि अगर YouTube में मुझे मजीद कंप्यूटर्स की EC2 की या वर्चुअल मशीन की जरूरत पड़ती है उसको होस्ट करने के लिए, ताकि बाकी लोग यूज कर सकें, तो YouTube कम टाइम के अंदर उसको इस सर्विस को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, लेकिन अब होता ये है कि कभी कभार हमारे पास, तो अच्छा फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सर्वर तो 1000 यूजर से ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल सर्वर्स हम खड़े कर देते हैं। ठीक है, ये सर्वर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और जो इनका जो पूरा लोड होता है, ये जितने भी हैं हमारे पास, ठीक है, 1000 यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, 1000 से अपने ऊपर ले लेते हैं यूजर्स, इनको सर्व करते हैं। ठीक है, 1000 ये सर्वर ले लेते हैं और 1000 ये सर्वर ले लेते हैं। अब यहाँ पे लोड बैलेंस हो गया। अगर ये सारी की सारी रिक्वेस्ट एक ही सर्वर पे आती तो सर्वर का क्रैश हो जाना था, यहाँ पे डिनाइल ऑफ सर्विस हो सकती थी। लेकिन अब चूंकि सर्वर्स ने आपस में बोझ लोड बैलेंस कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इसको लोड बैलेंसिंग कहते हैं। ये लोड बैलेंसिंग कैसे करता है, इसके अपने एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चूंकि यूट्यूब एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना यूट्यूब, सिर्फ एक जगह पे हम उसे होस्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे भी यूट्यूब है, यहाँ पे भी यूट्यूब है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमने डिजाइन किया, तो ना अब इसमें लेटेंसी आएगी, सबको टाइम पे सर्विस मिलेगी। ठीक है, ना जो है तो इसमें हमारे पास स्केलेबिलिटी का इशू है। अब जितने यूजर्स बढ़ते जाएंगे हम मजीद सर्वर ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमने इस काबिल बनाया है कि जितने सर्वर हम ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी है, 1 मिलियन यूजर आने से अचानक से यूट्यूब डाउन नहीं हो जाता, बल्कि यूट्यूब अवेलेबल रहता है। अगर अभी एकदम 1 बिलियन यूजर्स यूज करना शुरू कर दें यूट्यूब नेक्स्ट मिनट में, यूट्यूब को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अवेलेबल है, हाईली अवेलेबल है, एफिशिएंट है। ठीक है, उसका थ्रूपुट क्या है? ठीक है, अगर 180p 1080p अगर वो 1000 को दे रहा है, तो 1 मिलियन को एट द सेम टाइम दे सकता है यूट्यूब। सर्विसेबल, मैनेजेबल है। अगर ना होता तो हर दूसरे दिन बग्स तो निकलते रहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने यूट्यूब डिजाइन ऐसे किया है कि इसको टाइम पे सर्विस किया जा सके, इसको मैनेज किया जा सके। ठीक है, चलें सिस्टम डिजाइन और आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं, आज थ्योरी थी, लैब्स थी नहीं। ठीक है, बिजली भी नहीं है, गर्मी भी बहुत है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 8 मिनट रह चुके हैं, तो आप काइंडली मुझसे पूछ लीजिए रिगार्डिंग सिस्टम डिजाइन या जो हमने डेवऑप्स पढ़ा है, एनीथिंग आप पूछ सकते हैं।
आई एम न्यू एंड इट्स माई फर्स्ट सेशन, कैन यू गाइड मी कि हम इन क्लासेस को कहाँ पर लेकर चल रहे हैं? अच्छा, गुड क्वेश्चन है। इन क्लासेस को हम हमारी क्लासेस भी स्केलेबल है। ठीक है, इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने RHEL पढ़ लिया है तो वो डेवऑप्स पढ़ के, AWS क्लाउड पढ़ के वो जॉब हासिल कर सके लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, जो चाहे हो सकती हैं, बिल्कुल। और सिस्टम डिजाइन में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप एक्सपर्ट लेवल पे देख सकें क्लाउड को, क्लाउड के सॉल्यूशंस को। आपको जॉब की ऑफर आई है? अगर आप नहीं आई अभी, ठीक है, तो अगर आपने RHEL पढ़ लिया तो साथ में डेवऑप्स पढ़ें, कहीं से भी, यूट्यूब से पढ़ते हैं, जहां से भी, क्योंकि हर जगह पे जॉब्स में ये रिक्वायर्ड है। RHEL की जितनी भी जॉब्स हैं उनमें डेवऑप्स जरूरी है, लिनक्स की जॉब्स में। अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो काइंडली विंडोज सर्वर 2019 एंड 2016 को पढ़ें, उसकी लैब्स करें यूट्यूब से, कहीं से भी। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर जो है तो आप उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में पूरा नहीं उतरेंगे। ठीक है, यार ये तो मुझे रोजाना बताना पड़ेगा। मुझे लगता है मुझे YouTube पे कुछ शॉर्ट वीडियोस बनानी पड़ेंगी गाइडेंस के लिए, ताकि वो क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल सके लोगों को। ठीक है, क्योंकि बार बार मुझे उन वेबसाइट्स पे विजिट करके दिखाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, हाँ भाईजान कर लेंगे पेंड, लेकिन ये है कि ग्रुप डिस्क्रिप्शन भी काफी बार चेंज करनी पड़ती है, टाइमिंग चेंज होती है। मैं आपको बता देता हूँ, आप जाएं फ्री कोड कैंप पे, ठीक है, वहां से आप डेवऑप्स पढ़ लें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ लें वहां पे। ठीक है, मेहनत करें, एक हफ्ता लगाएं, डेडिकेटेड डेवऑप्स को पढ़ें, RHEL की 1.5 घंटा लैब करें, ठीक है, और किसी चीज को टच ना करें, स्टे फोकस्ड। अच्छा, तभी कंप्लीट होगा। सिस्टम डिजाइन में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर आप सिसऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक में जाएं, अगर आप आर्किटेक्चर लेवल पे काम करना चाहते हैं, अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आपको सिस्टम डिजाइन की टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स और एल्गोरिदम्स पता हो, ताकि आप आगे जाके कम्युनिकेट कर सकें। क्या आप लोग का सिस्टम तो ऐसे बना हुआ है, ये तो इस तरीके से होना चाहिए, राइट? यू नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट दैट यू आर स्मार्ट। अच्छा, बाकी लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा यार? मैं जब था स्टूडेंट था, मुझे तो हर वक्त कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा होता था, टीचर्स तंग होते थे। मुझे भी तंग करें ना, क्यों तंग नहीं कर रहे? पूछें, कोई क्यूरियोसिटी नहीं हो रही कि स्केलेबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, किस तरीके से? मैं वेबसाइट दिखाने लगा था, मैंने आपको भी फ्री कोड कैंप लिख कर दिया ना। खैर इरेलेवेंट हो, पूछें, सब इरेलेवेंट क्वेश्चन ही पूछते हैं यहाँ पे। इनको मैं वेबसाइट दिखा लूं, ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे कोड। अच्छा, कर देता हूँ मैं स्केलेबिलिटी दोबारा। फ्री कोड कैंप पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने डेवऑप्स लिखना है, और डेवऑप्स पे आके आपने यहाँ पे बिगिनर कोर्स करना है। बिगिनर के पास आपने प्रीरेक्विजिट्स करने हैं आपने, फिर बिगिनर इंजीनियरिंग करनी है आपनी, उसके बाद ये आप उसके टूल सीख लें, डॉकर शॉकर जितने आप सीख सकते हैं। दैट्स इट। जी, आप एक चीज पे फोकस करें, एक सेकंड, स्केलेबिलिटी को दोबारा डिफाइन करें। स्केलेबिलिटी क्या होती है कि स्केलेबिलिटी क्या होती है? वुसअत पजीरी होती है ना, और क्या होती है? अच्छा, एक मिनट। ये देखें, ये आपका पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक सर्वर खड़ा किया, राइट? अब मेरी अभी जो है, हमारा अभी जो मेरी नीड है वो सिर्फ एक सर्वर की है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ 10 यूजर्स हैं। कल को मेरे पास 10,000 हो जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा? एक सर्वर तो हैंडल नहीं कर सकता, तो मैंने इतनी स्पेस छोड़नी है कि मैं इसमें मजीद बाकी जो है तो बाकी सर्वर्स इजीली खड़े कर सकूं।
ताकि लोड बैलेंसिंग हो जाए यहाँ पे। अगर क्लियर हो गया आपको तो आप मुझे बता दें स्केलेबिलिटी का। स्केल करना, स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन, उसे ज्यादा या कम करना, ठीक है, उसे वसी करना या उसे कम करना, उसे इट्स कॉल्ड स्केलेबिलिटी। इसको मैं आपको बताऊंगा हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी क्या है, वर्टिकल क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह अगले सेशन में। आप रेज्यूमे के बारे में पूछें क्वेश्चन, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओके, हा स्केलेबिलिटी डिफाइन करते हैं दोबारा। अल्नाफे इज टू ब्रॉड, सो आई सजेस्ट दैट वी शुड फोकस ऑन वन थिंग ओनली। अगर आपके पास टाइम है, आप डिसिप्लिन्ड हैं, देन सर फैसल के तरीके से चलें। आप डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपको पता है कि आप किस तरह के बंदे हैं, तो आप फिर जो है तो फोकस तरीके से स्टडी करें, जल्द से जल्द एक खत्म करें, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, राइट। डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट, क्योंकि अलाफे है ब्रॉड है, काफी ब्रॉड है, मैं खुद नहीं खत्म कर पा रहा, काफी ज्यादा है। स्टेप बाय स्टेप देख दी इनको, क्या मतलब? जी आप अनम्यूट कर लें, आप मरियम आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप हम सब जानते हैं कि नाफे में हमें बहुत सारी जो है ना वो बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है और बहुत सारी डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी है, सेसऑप्स है और डेटा साइंस है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है, फॉर एग्जांपल हमारा साइबर सिक्योरिटी और सेसऑप्स आरएचएल है। तो अब अगर हम कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या हमें अपना रिज्यूमे इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि साइबर सिक्योरिटी के लिए जहाँ पे अप्लाई करना हो तो साइबर सिक्योरिटी का रिज्यूमे डिज़ाइन करें उससे रेलिवेंट, और जहाँ पे हम सिस्टम ऑपरेशन या लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अप्लाई करें तो उसी से रेलिवेंट, मतलब हमें अलग अलग सेपरेट सेपरेट अपना रिज्यूमे डिज़ाइन करने चाहिए या एक ही रिज्यूमे में सब कुछ मेंशन कर देना चाहिए? गुड क्वेश्चन। असल में देखें, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, अभी ये सेशन फिर बंद हो जाएगा, मैं नई लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, दे आर वेरी फोकस, उनके पास टाइम बड़ा कम होता है, ठीक है। अक्सर औकात उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन एल्गोरिथम के थ्रू।